Students, good afternoon. But I request you to everybody start the videos. That's important because I want to see today how many of you are sitting with calculators because we're gonna start the sums. Show me your calculators, everybody. Calculators. Just imagine कि अगर मुझे कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ रहा है कैलकुलेशंस के लिए तो तुम लोगों को तो कितनी जरूरत है वो खाली समझ लो. सो आई हैव शोन इवन माय कैलकुलेटर आल्सो. बराबर है. सो फटाफट इन द प्रीवियस 2 सेशंस वी डिड द सम्स ऑन स्कैटर डायग्राम and then we discussed the basic theories of correlation. Today the real macho sums begins कि जहां पर हम पेंसिल स्केल का भी उपयोग करेंगे, कैलकुलेटर का भी उपयोग करेंगे और अगर भगवान ने कुछ अगर तीसरे माले पे दिया है तो वो दिमाग का भी थोड़ा इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. सो नोटबुक निकालो. गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक. फॉर्मूलास बाय स्कैटर डायग्राम मेथड. गिव द हेडिंग formulas by scatter diagram method. Let's write the formula. Give the heading formula by Carl Pearson method. Formula by Carl Pearson method. Now, the formula for Carl Pearson method is for the correlation coefficient R. हम R का अब वैल्यू ढूंढेंगे. स्कैटर डायग्राम मेथड में कैसा रहता था? वी वर एबल टू जस्ट फाइंड आउट द रिलेशनशिप वाज पॉजिटिव और नेगेटिव. ऐसा सिर्फ हम ढूंढ सकते थे, हमें वैल्यू नहीं मिलती थी. वी वर ओनली एबल टू फाइंड आउट द नेचर. लेकिन अब कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला से हम ढूंढ पाएंगे कि व्हाट वुड बी द डिग्री और द स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन. तो उसमें पहला वाला फॉर्मूला लिखो. आर का सिग्मा x minus x bar into y minus y bar upon root सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट में इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार रूट में. अब ये फॉर्मूला कब यूज करने का वो भी लिख दो. व्हेन वैल्यूज ऑफ x and y are relatively smaller. Values of x and y are relatively smaller and x bar and y bar are not in integers. X bar and y bar are not in integers. मतलब x और y हमको जो दो वेरिएबल दिए होंगे उसकी वैल्यू बहुत छोटी होंगी, रिलेटिवली स्मॉलर, एंड देन x bar and y bar
are not in integers, they are not in point. Now this is the first formula given by Carl Pearson. Write down the second formula. Write down the second formula. R is equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y. N sigma xy minus sigma x into sigma y root n sigma x square minus sigma x the whole square into root n sigma y square minus sigma y the whole square. अब ये वाला फॉर्मूला हमें कब यूज करना है वो लिख लो. when again values of x and y are relatively smaller and x bar and y bar are in integers. X bar and y bar are in integers. So these are our main two formula based on which today we plan to do sums. Then the third formula will watch it later on. Fatafat learn karo. The first formula. First, correlation coefficient R is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon root x minus x bar square into root y minus y bar square. What is the second formula? N sigma xy minus sigma x into sigma y upon root n sigma x square minus sigma x the whole square into root n sigma y square minus sigma y the whole square. Now again I repeat, what are we doing today is, in the previous session we saw that we are doing the sums by scatter diagram, but that scatter diagram method will give me only information about positive or negative correlation. It will not give me the degree, the strength, what's the numerical value. तो उसके लिए आज हम ये कार्ल पियर्सन की मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने सिर्फ आज दो फॉर्मूला देखने हैं. हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूला देखने हैं आज. उसमें पहला वाला कौन सा है? फटाफट लर्न करो, या तो लर्न करने की एक्टिंग करो. शाबाश, एक्टिंग करो. हाँ कि मैं लर्न कर रहा हूं सर, ऐसे हिलो डुलो एक्टिंग करो. चलो हिलो डुलो एक्टिंग करो लर्न करने की. हाँ पब्लिक देखो झूला झूलना शुरू हो गई है, पब्लिक झूला झूल रही है. बढ़िया. अभी तो जब हम सम्स करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा, तब जल्दी हमको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा एंड देन वी वुड एबल टू डू द सम्स एकदम फटाफट. अच्छा एक झूठा थम्स अप दे दो कि हमें सर फॉर्मूला याद हो गया. एक झूठा सा थम्स अप दे दो जल्दी फटाफट. गिव मी अ थम्स अप. ओ देखो, हाँ अरे शाबाश बेटा, आई ट्रस्ट यू. 3-4 दिन तो लगेंगे सर 2-3 फॉर्मूला करने में, 3-4 दिन तो लग जाएंगे. शुरू करते हैं. चलो एक्सरसाइज 2.2 पे चले जाएंगे. आई डोंट नो द पेज नंबर, बट देन दोज हु आर स्टिल नॉट हैविंग द टेक्स्ट बुक, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. मैंने पूरा सम भी कॉपी कर लिया है, टेबल भी बना के रखा है. तुम्हें सिर्फ मुझे बताना है पहला फॉर्मूला करूं कि दूसरा फॉर्मूला करूं. ठीक है, तो चालू करते हैं. चलो 2.1 का द फर्स्ट सम. श्री गणेशाय नमः. ओ सॉरी, सुवांचु से. हाँ. From the following information obtained from the sample of 7 families of a society regarding the height of the father and height of the son. देखो क्लियरली लिखा है कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स. तो मैंने जिस तरह से टेबल बनाया है, फटाफट टेबल बना दो. हाइट ऑफ फादर, हाइट ऑफ सन, एंड देन मुझे फादर की हाइट का टोटल दे दो, सन की हाइट का टोटल दे दो. फटाफट
गिव मी टोटल फादर की हाइट का, सन की हाइट का, अपने कैलकुलेटर पर, और मुझे मैसेज करो, मुझे मैसेज करो। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। बेटा वन अगेन, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, जब हम ये सारे फॉर्मेट और कॉलम्स बना रहे हैं ना, पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करके व्यवस्थित बनाओ जो, प्लीज। इफ आई वुड हैव बीन इन द क्लासरूम और तुमको बिना पेंसिल या स्केल से अगर करते हुए देखता, तो तुमको पता है मैंने क्या धमकी दी थी, पूरा वो पेज फट जाएगा, पूरी वो बुक फाड़ दूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर तो बेटा खाली मैं बोल के ही तुम्हारी फाड़ सकता हूं, तो इसीलिए बोलने दो। चलो पेंसिल स्केल लेके बेटा एकदम व्यवस्थित, આમ કોઈ આપણી બુક જોવે તો ખબર પડે કે આપણે આમ કામ કર્યું છે યાર, મસ્ત વાળું। ટોટલ હું રાહ જોઉં છું। प्रीशक सेंट मी द टोटल। तो बहुत सारे जनों को आ गया यार। ध्रुविक ने टोटल दे दिया, जील, हीर, देव, दिवसे, हार्दवी ने टोटल दे दिया है। दूसरी जनता के बेटा फरमाइश आई है सर, शेयर द स्क्रीन। आई एम शेयरिंग इट बेटा, कम ऑन। दृष्टि इज रेडी विद द आंसर। अंकिता, ओम शेड़गे, सुपर्क, एकदम सुपर्क। फ्रक्षीन ने आंसर भेजा है। जानवी, सुहानी, अमन, लीजा, आस्था, बढ़िया। हेतवी, ध्रुवी। बेटा द हाइट ऑफ द फादर, द हाइट ऑफ द सन। नाउ अविराज, धन्नो, मारिया, किंजल, नुपुर। ओके ओके, गुड। सो अगर मैं टोटल करूं फादर का और सन का, तो फादर का टोटल कुछ आ रहा है 1169, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सन का टोटल आ रहा है 1176। सैम, नित्या, वंशिता, सिया। ओके बहुत बढ़िया। मेजॉरिटी ऑफ यू गिव मी द टोटल। नाउ वेट, 1169 एंड 1176 ऐसा आ रहा है ना, फादर का टोटल, सन का टोटल। मेरे को एक्स बार और वाई बार ढूंढ के दो। સર છૂટો કેલ્ક્યુલેટર ફેંકી દઈશ, મને કેવી રીતે આપણે પહેલો સમ કરીએ છીએ। બેટા છૂટો તમે કેલ્ક્યુલેટર ના ફેંકશો, એક્સ બાર વાય બાર સર મને કેવી રીતે આવડે પહેલા દિવસે, એ તો શીખાડો यार, આવું કેમ કરો છો। चलो લખો, ફોર્મ્યુલા લખો एक्स बार का। ओ यस, माय गंवार वाली जनता, लिखो एक्स बार का फॉर्मूला रहेगा, इट विल बी सिग्मा xi अपॉन n। तो 1169 अपॉन n, जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। रुको मेरे पास भी कैलकुलेटर है। हाँ तो वापरो ने, हमने હું લેવા બૂમ પાડીને કહો છો। મારો આન્સર આવી ગયો છે और मैं आंसर दे रहा हूं 167। एक्स बार का आंसर आ रहा है 167। वाई बार उसका आएगा सिग्मा yi अपॉन n। तो 1176 डिवाइड बाय 7, 1176 डिवाइड बाय 7, 168, 167, 168। बेटा एक्स बार वाई बार 167, 168। बेटा कितने लोगों का आ गया? बहुत बढ़िया। मैंने थम्सअप बोला, थम्सअप दो, मैंने बोला। होशियारी मार रहे हो। जिनका आंसर आया अपनी जगह से खड़े हो जाओ, चलो अपनी जगह से खड़े हो जाने का जिनका आंसर आया। सर માંડ માંડ તો થમ્સઅપ આપીએ છે, જગ્યાથી ઊભો કરવાનો કહેશો ને, વિડિયો બંધ કરી દઈશ, નહીં ચાલે, વિડિયો બંધ કરી દઈશ। 167 and 168। now go for the formula which I made you write, first one and second one। तो डोंट यू थिंक यहाँ पर एक्स बार और वाई बार इंटीजर्स में नहीं आ रहे हैं, इंटीजर्स में नहीं आ रहे हैं,
तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाला। तो चलो सम में जरा देखो आगे तुम्हें कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। चलो बनाओ मेरे साथ। पहला कॉलम बनेगा, द फर्स्ट कॉलम विल बी x minus x bar. Next column will be y minus y bar. એના પછીનો column x minus x bar into y minus y bar. उसके बाद का column x minus x bar का square. એના પછીનો column y minus y bar નો square. આટલા 5 column બનશે. જરા ફટાફટ બનાવી દો. અને અહીંયા x minus x bar જે છે ને એ આપણે લખી દઈએ. That is x minus 167. ये वहां पर ऐसा ऊपर में लिख दो. और y bar है 168. So y minus 168 ऐसा लिख दो. ऐसे कॉलम्स बना लो, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूं. हमने सबसे पहला स्टेप देखा, हमें x bar y bar ढूंढना है. The first step we have to calculate x bar and y bar. We saw that x bar and y bar are not in integers, and that is why we went for the first formula. And as we are going for the first formula, these many additional columns you are supposed to make. X minus x bar, and उसके ऊपर रेफरेंस के लिए लिख देने का x minus 167, y minus y bar रेफरेंस के लिए लिख देने का y minus 168. પછી આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન, પછી x minus x bar का स्क्वायर, y minus y bar का स्क्वायर. But I am waiting. इतना प्लीज कर लो, प्लीज. Now can I start with the calculations? Are you all ready with your calculator? बेटा प्लीज भूल ना करता आमा कैलकुलेटर રાખજો પોતાની પાસે. Let's start. बेटा let's start. The first sum, y minus y bar. तो x minus x bar, y minus y bar. तो 170 minus 167 वो ऊपर लिख के रखा है देखो. तो पहले वाले का आंसर 3 आएगा. 170 minus 167. પછી 169 minus 167, that is 2. 168 minus 167, that is 1. 167 minus 167, 0. अब देखना तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा गोदा यही मारोगे. 166 minus 167 करवानो छे बेटा, -1 આવશે. It will be -1. Don't make mistake. हम क्या करेंगे पता है? 167 minus 166. पॉजिटिव જ મૂકી રાખશું. એવું ના કરતા. x minus x bar કીધું છે. x minus x bar. Clearly it is saying come-ons. Come-ons. So this is -1. ये जो आ रहा है वो -1 है. Then 165 is -2. And this is -3. टोटल करो. टोटल सर जीवन का जो सबसे बड़ा टारगेट है मेरा मेरे पेपर में लाने का वो आ रहा है टोटल 0. Now always remember one thing बेटा, most important point. બધા હમણાં પેન છોડીને listen to me. Whenever we do x minus x bar, मतलब हम जब ये x minus x bar ढूंढते हैं तो हम इसे स्टैटिस्टिक्स के वर्ड में कहते हैं we are taking deviation from mean. क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में? It is deviation taken from mean. तो એનો જે પણ આપણે આન્સર લખીશું ને ટોટલ જ્યારે કરશું હંમેશા 0 આવવો જોઈએ. अगर तुम्हारा टोटल 0 नहीं आ रहा है तो ऊपर के कुछ कैलकुलेशन में तुमने गलती करी है. Are you getting it? तो वहां पर पेन से लिख लो, पेन से लिख लो कि x माइनस एक्स बार करोगे ये 0 आएगा टोटल, वो लिख लो. एंड वहां पर लिख दो ऑलवेज टोटल विल बी 0.
always total will be 0 x माइनस एक्स बार का। अब बेटा ट्राई मारते हैं y माइनस वाई बार में क्या ये एप्लीकेबल हो रहा है, चेक करो। y माइनस वाई बार એટલે 172 माइनस 168 that is 4. Okay, 168 minus 168 0, 170 minus 168 2 0, minus 3 नब्बड़ो, 165 minus 168 से minus 3, 167 minus 168 minus 1, 166 minus 162, 166 minus 168, so minus 2. चेक करो, देखो y माइनस वाई बार ही हमने करा है ना, तो अगेन इट इज फ्रॉम द मीन, so total needs to be 0 again. Check करो, are you getting that? Are you getting the total 0 again? Are you getting the total 0 again? It has to be 0 because we are again doing the deviation from actual mean. Y bar is my actual mean, तो deviation लइए तो हमेशा 0 जाओ उससे। चलो त्रीजो कॉलम करिए बेटा, कैलकुलेटर जोड़े, त्रीजो कॉलम x minus x bar, y minus y bar. So 3 4s are 12, x minus x bar, y minus y bar, 3 4s are 12, 2 into 0 तुम्हारे marks 0, 2 1s are 2, 0 into 0 your marks, minus 1 into minus 3 is 3, 2 1s are 2, 3 2s are 6. Let's do the totaling. 12 plus 2 plus 3 plus 2 plus 6, 25. 25 के नीचे लिख लो बेटा कि ये जो आया है, 25 के नीचे लिख दो ये जो आया है, इट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये इसका टोटल आ गया 25। बेटा सबका टोटल 25 ऐसा आ रहा है, चेक करो 25। ओके, पची नेक्स्ट कॉलम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब देखो x माइनस एक्स बार क्या था 3, x माइनस एक्स बार वॉज 3, अब मुझे उसका स्क्वायर चाहिए, बोले तो 9, 3 का स्क्वायर 9। ना खबर पड़ी सर, बेटा किसका स्क्वायर किया पता चला, x माइनस एक्स बार में पहलो 3 હતો એનો સ્ક્વેર કર્યો 9, બીજા તમે કરીને મને ટોટલ આપી શકો છો જાતે? ट्राई ट्राई ट्राई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दूसरे के खुद से जरा करो तो, और फिर मुझे टोटल भेजो। बहुत बढ़िया, चलो मैं भी कर रहा हूं। 3 का स्क्वायर करा 9, પછી 2 का स्क्वायर है 4, પછી 1 નો સ્ક્વેર છે 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9। सो टोटल अगर मैं करूं 28 झाले, 28 ની નીચે લખો दिस इज सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ये। एंड देन द नेक्स्ट y माइनस y बार, लेट्स गो y माइनस y बार। सो इफ यू सी y इट इज 4 एंड उसका स्क्वायर करूं तो 16, देन 0 का स्क्वायर 0, देन 2 का स्क्वायर 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, देन वापस 0 का स्क्वायर है 0, 3 का स्क्वायर है 9, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4। सो टोटल 34, टोटल आई एम गेटिंग 34। उसके नीचे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट
दिस इज सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर, द टोटल। राइट बेटा, आर यू ऑल रेडी विद द कैलकुलेशन? इज ऑल डन बेटा? कैलकुलेशंस बता पति क्या? आर यू ऑल रेडी टू पुट इट इन द फॉर्मूला? लेट्स राइट इट डाउन, कम ऑन, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। दिस द सम इन विच आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि तुमसे लर्न हो जाएगा फॉर्मूला। लिखो, r is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar root sigma x minus x bar square into root sigma y minus y bar का स्क्वायर। अब देखो, मैंने तुमको इतनी हद के लेवल का स्पून फीडिंग कराया ना, सारे आंसर रेडी है अपने पास, खाली वैल्यूज डालनी है फॉर्मूला में, सारे आंसर रेडी हैं। तो अगर मैं देखूं सम में, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है 25, तो 25 इंटू रूट 28 इंटू रूट 34। ओके, तो 25 डिवाइड बाय, अब देखो इधर ध्यान बेटा, मुझे ना तुम्हें स्मार्ट बनाना है। तुम अभी जो हार्डवर्क कर रहे हो उससे तुम्हें स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है मुझे। तुम देखो क्या करोगे, अपने कैलकुलेटर पर है ना, तुम पहले रूट 28 करोगे, उसका आंसर लिखोगे, फिर रूट 34 करोगे, उसका आंसर लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ला कितना जीवन में टाइम पास ना पोसाए। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, 28 इंटू 34 करो, इक्वल टू, देखो 952 स्क्रीन पे दिख रहा है, 952 स्क्रीन पे दिख रहा है। एनु पछी छतरी मारो, अंडर रूट करो, 30.85 એવું આવે છે, ચેક કરો 30.85। so what do we do કે we are not in kindergarten anymore, so 28 into 34 that is रूट सीधा 952 करके आंसर ले लेने का। so 25 डिवाइड बाय 30.85, so 25 डिवाइड बाय 30.85, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.81। अपना आंसर आ रहा है, चेक करो, 0.81। बेटा 0.81, 0.81। अच्छा, क्या देखो हमको वैल्यू मिली कि इनके बीच में कोरिलेशन कैसा है? हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन के बीच में देखो कोरिलेशन है, संबंध है, और उस संबंध का वैल्यू भी आ गया 0.81। तो इंटरप्रिटेशन लिखो, इंटरप्रिटेशन लिखो, आफ्टर कैलकुलेटिंग द आंसर write down the interpretation। it is partial positive correlation, it's partial positive correlation। आंसर क्या लिखेंगे हम? पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है ना, आंसर अपना पॉजिटिव में आ रहा है, 1 के नजदीकी है तो पार्शियल पॉजिटिव। अगर 1 आवे तो 1 परफेक्ट पॉजिटिव, 1 अगर आंसर आवे तो શું આવે? પરફેક્ટ। અને બીજા કોઈ પણ આન્સર આવે એટલે પાર્શિયલ। 1 હોય તો જ પરફેક્ટ લખવાનું, અધરવાઇઝ યુ રાઇટ પાર્શિयल पॉजिटिव। नेगेटिव में आंसर आएगा तो -1 अगर आएगा तो परफेक्ट नेगेटिव, एंड अगर उसके अंदर अंदर आया 1 के तो पार्शियल नेगेटिव। अब देखो आर का आंसर जैसे मैंने हमने थियरी में पढ़ा था, हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगा। देखो ऐसा आ रहा है यहाँ पर,
-1 અને +1 ની વચ્ચે આન્સર આવે છે तो इट इज अ हिंट कि कुछ बराबर किया है हमने। उसके बाहर अगर आया तो समझो तुम्हारा बेटा कैलकुलेटर के साथ कोई कोरिलेशन बैठा नहीं है, कुछ गलती हुई है। ठीक है बेटा, पहला सम थोड़ा धीरे धीरे किया, दूसरा सम गियर अप फटाफट हो पाएगा। चालू करो सेकेंड सम, 2.1 का सेकेंड सम। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। I have prepared for all the sum. Are you? बाजू में चलो। A local cottage industry making various snacks sell each snack packets in 100 grams. From a study of the price and the determination of a new kind of a wafer, the following information is obtained between the price and demand. अब देखो प्राइस रुपीस में है, डिमांड 1000 यूनिट्स में है। सो अगेन पहले तुम ये टेबल बना लो, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। प्राइस और डिमांड का टेबल बना लो, उसके बाद मुझे प्राइस और डिमांड का टोटल देके एक्स बार वाई बार ढूंढ के दो। प्राइस और डिमांड का टोटल देके एक्स बार वाई बार ढूंढ के दो। कम ऑन। बेटा बाय दैट टाइम आई एम आल्सो डूइंग ऑन माय कैलकुलेटर, पर मैं आंसर नहीं बताऊंगा तुमको, छुपा के रखूंगा, छुपा के रखूंगा। बेटा इसका टोटल कुछ 180 आ रहा है, चेक कर लेना। एक्स નું ટોટલ 180 આવે છે। एंड y का टोटल, द प्राइस एंड द डिमांड, y का टोटल कुछ 132 आ रहा है, चेक करो। 180 અને 132 હું તમારી રાહ જોઉં છું। I don't want to rush to the sum. I'm waiting for you. 180 and 132. Are you getting those totals? 180 and 132. Are you getting those totals? Request you to get me the x bar y bar. Request you to get x bar and y bar. But many of them sent the message and the answer is absolutely correct. So again, if I write the formula for x bar, it will be sigma xi upon n. So 180 is the total and the items are 6. So 30. Y bar is sigma yi upon n. 132 divided by 6, 22. I'm getting the y bar 22. So यहां पर बेटा ध्यान, x बार y बार 30 और 22 आ रहा है, तो वापस इंटीजर में नहीं है, तो हम ये x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे। यस, गो फॉर इट, कम ऑन, गो फॉर इट, कम ऑन। सो यहां पर हम पहला कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का, and for our reference I'll write x minus 30 it is. Next column बनेगा y minus y bar का, and for my reference I'll keep it as y minus 22. Then x minus x bar into y minus y bar, x minus x bar square
y minus y bar square. Okay. So these 5 columns you are supposed to make. Come on. હું રાહ જોઉં છું. આ 5 કોલમ બનાવી દો. હું તમારો વેઇટ કરું છું. રુદ્રી તમારું ટોટલ ખોટું આવે છે y નું 132 આવે છે. તારું 129 કઈથી આવે છે? ચેન્જ ઇટ કમ ઓન. કોઈ વેલ્યુ લખવામાં ભૂલ કરી દીધી લાગે છે. વાંધો નહીં, ચલો ચેન્જ કર દો. But give me thumbs up if you are ready with the format. I can put down the values. Are you ready with the table? Can I put down the values? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, हम साथ साथ हैं. जोरदार बेटा, जोरदार. चलो, हमको साथ में ही रहने का है सर, क्योंकि कॉपी मारने में मजा अलग है. हेलो, x minus x bar, that is 24 minus 30 is minus 6. It's minus 6. 26 minus 30 minus 4. 32 minus 30 2. 33 minus 30 3. 35 minus 30 5. 30 minus 30 0. But check the total. Is it 0? Check it up. The total has to be 0. तो ही अपना कैलकुलेशन ऊपर का सही है. x minus x bar का जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे, and then when we go for the summation, when we go for the total, it has to be 0 always. Then y minus y bar, 27 minus 22 positive 5. 24 minus 22 positive 2. Sunya. 22 minus 22 is Sunya. 20 minus 22 is negative 2. 25 minus 22 is 7 minus 7. And 24 minus 22 is 2. Check the total. The total I'm getting 0 again. I'm getting the total 0 again, and I'll always repeat x minus x bar, y minus y bar का total 0 ही आएगा. अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करना है, प्लीज बी केयरफुल. माइनस का साइन है, यू हैव अ माइनस साइन, सो व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग प्लीज टेक केयर. अगर एक ही माइनस का साइन है तो अपना आंसर माइनस में रहेगा, दोनों माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा. आई होप यू नो दैट. हो सर, फर्स्ट टाइम पता चला. फर्स्ट टाइम पता था तुम लोगों को? ક્લાસમાં પૂછ્યું હોત ને તો કેટલા લોકોએ ધબડકા વાળ્યા હોત. હમણાં હોશિયારી ના મારો ઓનલાઈનમાં કે આ મને તો ખબર હતી સર. જૂઠડાઓ. હાલો, 6 into 5 is minus 30. 4 2s are 8. But it will be minus કેમ કે એક નેગેટિવ છે. 2 into 0 will be 0. 3 2s are 6 but negative. 7 5s are 35 negative. 2 into 0, बेटा 2 into 0 तो वो तो तुम्हारे मार्क्स हैं 0. एंड टोटल अगर हम करें सो minus 79 आ रहा है. The total if I do, I'm getting minus 79. और उसके नीचे लिख डालने का, this is the summation of x minus x bar into y minus y bar, minus 79. Then x minus x bar का स्क्वायर, तो minus 6 का स्क्वायर बेटा, माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 36. 4 का स्क्वायर 16. 2 का स्क्वायर 4. 3 का स्क्वायर 9. सर નથી ખબર પડી રહી. કોનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો છો? આ સ્ક્વેર કયો કરો છો ખબર પડે છે?
x माइनस एक्स बार नी वैल्यू जो वो बेटा x माइनस एक्स बार नी वैल्यू उसका स्क्वायर स्क्वायर. I hope you are able to catch that. I hope you are able to catch that. बहुत बढ़िया. Then 5 का स्क्वायर 25. 5 का स्क्वायर 25. 0 का स्क्वायर will be 0. एंड इसका टोटल अगर मैं करूं तो 90 आ रहा है. 90. So this is 90. This is sigma x minus x bar का स्क्वायर जिसका टोटल आ रहा है पॉजिटिव 90. Then y minus y bar का स्क्वायर that is 5. Can you see 5 उसका स्क्वायर that is 25. Then 2 का स्क्वायर 4. 0. 2 का स्क्वायर 4. 7 का स्क्वायर is 49. And 2 का square is 4. So again, if I do the total, it comes to 86. 86. And that is sigma. Now that is sigma y minus y bar का square. That is sigma y minus y bar का square. अच्छा सुनो ना, एक ऑनेस्ट आंसर दोगे? ये 3 वैल्यू कितनों की सही आ गई थी मेरे करने से पहले? मेरे करने से पहले? ओहो, वे ऑनलाइन क्या पढ़ाने लगा हूं यार मैं आजकल. तो क्या बात कर रहे हो यार? ना होए ऑनलाइन पढ़ावड़ी क्यों मैंने भणाव था? अरे चलो, let's put it in the formula and get the final answer. Put it in the formula and give me the final answer. Let's do it together. I am also doing that. I am also doing that. My correlation R is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon root sigma x minus x bar का square into root y minus y bar का square. So that's equal to minus 79 into root 90 into root 86. So beta I told you, मजाक मस्ती ना करता. 90 into 86 पहला कर देवाना. Whatever the answer पहला equal to करवानो. 90 into 86 નું equal to કરવાનો એટલે root કઈ 7740 આવે છે. So minus 79 divided by अगर root मारे so 87.97 ऐसा आ रहा है. So 79 minus 79 divided by 87.97 तो 0.898 ऐसा आ रहा है ना, तो उसको राउंड ऑफ कर दो, 0.90 कर दो. 898 આવે છે બેટા, એને રાઉન્ડ ઓફ કરી દો, ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલેન્ટ ટુ 0.90 લઈ લો. યસ, ટેક ઇટ એઝ 0.90, लेकिन माइनस है. इंपॉर्टेंट वस्तु साइन भूलसो नहीं, जो मैं भूल गया था. माइनस है, माइनस. सो हम इंटरप्रिटेशन क्या लिखेंगे? माइनस में आंसर आ रहा है तो इंटरप्रिटेशन लिखेंगे इट इज partial negative correlation. It's partial negative correlation. Partial negative correlation. But what say? But what say? Yo, getting the answer? डन है, डन है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। थर्ड सम में पहला जन है, आई नीड टू कंफर्म एक्स बार वाई बार का आंसर आ रहा है कि नहीं, जरा देखो तो थर्ड वाला सम एक बार उठाओ तो थर्ड वाले का टोटल करो तो, અને જરા મને x બાર y બાર આપો તો થર્ડ વાળા સમમાં. The following information of a sample of the 6 students of a school regarding their marks in 2 subjects. So just I want to confirm x बार y बार का आंसर इसमें किसे कैसे आ रहा है. 640 છે टोटल, 1 2 3 5 6 7 8 9 10. ઓકે, આનો તો 64 આવે છે અને આનું 610. ओके बेटा थर्ड सम उठा लो, चलो खुद से करेंगे. मैं तुम्हें पूरे 5 मिनट दे रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा. आई विल बी साइलेंट एंड यू विल बी वायलेंट ऑन द बुक्स. अप्लाई द सेम फॉर्मूला, सेंड मी द फाइनल आंसर. आर का सीधा आंसर भेजना, उसके पहले एक मैसेज किया ना, निकाल दूंगा मीटिंग में से अपने आप को, अपने आप को निकाल दूंगा. चलो, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, कम ऑन. The marks of the sample of the 6 students, accountancy, statistics. Come on, do it. टोटल वोटल करो, मजा करो, सम जाते करो, खुश रहो. चलो फटाफट. बेटा, are you all doing the sum? Okay, doing the acting of doing the sum. Yes, Siddharth, any doubt? હા સર, આમાં છે ને પેલી x બાર અને y બાર ની વેલ્યુ 64 61 આવી, પેલું ડિવાઈડ કર્યું તો આમાં પછી x અને y શું લેવાનું? x અને y શું લેવાનું એટલે? એટલે પેલું x અને x માઈનસ y, x બાર ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હોય ને, તો એમાં x શું લેવાનું? x આ તો રહ્યા બેટા, આ તો રહ્યા x ના વેલ્યુ 60 80 50 80, આ તો x ની વેલ્યુ રહે. પણ એવું નહીં, હવે અહીંયા 64 છે એટલે 64 માઈનસ 60 એવું કરવાનું. 60 માઈનસ 64 કરવાનું ને બેટા, x માઈનસ x બાર માઈનસ 64. હા, 60 માઈનસ 64. સારું સારું. Yeah.
but I am slowly, gradually starting the sum. You be ahead of me, okay? Don't try to copy me. Now, if I do the totaling of the marks in accountancy, that was coming to 640, and marks in statistics, that was coming to 610. किसी का अगर यहीं पे गलती है तो बेटा मेरे साथ शुरू कर दो. यहां पर x बार का टोटल आएगा सिग्मा xi अपॉन n, so that is 640 upon 10, that is 64. Y bar is sigma yi upon n, so 610 upon 10, that is 61. So x bar y bar not in integers, so again I'll go for the formula x minus x bar, so that will be x minus 64, y minus y bar, x minus 61, x minus x bar, y minus y bar, x minus x bar square, y minus y bar का square. So 60 minus 64, if I do, that comes to minus 4. 80 minus 64, that comes to minus 16. Oh, sorry, positive 16. 80 minus 64 is positive 16. 50 minus 64 is minus 14. 80 minus 64 is again 16. 95 minus 64, if I do, that comes to positive 31. 40 minus 64, that comes to negative 24. 70 minus 64 is 6. Again, negative 24. Then 35 minus 64, minus 29. 90 minus 64 is again 26. It is 26. Right? ऐसा आ रहा है, जरा चेक कर लेंगे. And if I'm now trying to do the totaling of the same, yes, I'm getting the total 0. मतलब all values are correctly placed. X minus x bar. Now y minus y bar. 50 minus 61 is minus 11. 75 minus 61, it's 14 positive. 60 minus 61 is negative 1. 85 minus 61, it's positive 24. 90 minus 61, it's positive 29. 40 minus 61, negative 21. 65 minus 64 is 4. 30 minus 61 is minus 31. 45 minus 61 is minus 16. And 70 minus 61 is positive 9. The total I'm getting 0. Matlab all the values are properly placed by me. The value I'm getting is 0. Now, let's multiply this. X minus x bar, y minus y bar. 11 into 4 is positive 44. देखो दोनों माइनस के साइन है, ध्यान लगाना, दोनों माइनस के साइन है. Then 16 into 14 is 224. Then 14 minus 14 into minus 1 is positive 14. Then 16 into 24, 384. But that's why I said calculator is required. 31 into 29, 899.
-24 into -21 is positive answer, 504. 6 4s are 24. 24 into 31, 744. Then 29 into 16. 29 into 16. 464. 26 into 9. 234. And बेटा प्लीज मेक द टोटल. x माइनस एक्स बार का टोटल जरा कंफर्म करो कितना आ रहा है. 3535. 35 35. 3535. Check it up. That is the total for sigma x minus x bar into y minus y bar. अच्छा 35 ऐसा टोटल आ रहा है बेटा आप लोगों का. Am I going correct? All the calculations are going correct. 35 ऐसा आ रहा है sigma x minus x bar y minus y bar. Okay, so let's go for now sigma x minus x bar का square. x minus x bar का square. तो 4 का स्क्वायर करते हैं चलो. सो बेटा 4 का स्क्वायर तो है पॉजिटिव 16 ही आएगा. देन 16 into 16 is 256. देन 14 into 14 is 196. उसका स्क्वायर करेंगे. 16 into 16 is 256. Then 31 into 31 is 961. 24 into 24 is 576. 64 का स्क्वायर is 36. Then 24 is again 576. 29 का स्क्वायर है 841. And then 26 का स्क्वायर है again 676. Total 4390. 4390. This is sigma x minus x bar square. 4390. Now let's go on to y minus y bar का 11 का square 121. Then 14 का square 196. 1 का square 1. 24 का square 576. 29 का square 841. Then 21 का square 441. Then 4 का square 16. 31 का square 961. 16 का square है 256. And 9 का square है 81. So total 3490. Total is 3490. Now that is sigma y minus y bar का square. 3490. बेटा honestly are you getting these totals? 2 मिनट में आवे सम पता ही दिए. चलो 2 मिनट में आवे सम पता ही दिए. Let's put it in the formula. Are you getting the totals? जिनका नहीं आ रहा है प्लीज
check your answers. जिनका नहीं आ रहा था, please check your answers. I'm waiting. I said I'm waiting. Please check your answer. And now let's complete. Let's complete. R is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon root sigma x minus x bar का square sigma x minus x bar का square into root sigma y minus y bar का square. Sigma x minus x bar is 35 root 4390 into root 3490. So 4390 into 3490, जो भी आंसर आया रूट करो. So 35 divided by 3914.21. So 35 0.90 अपना आंसर बैठ रहा है. चेक करो. 0.90. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसका रूट निकाल के फाइनल आंसर ही सीधा मैंने ले लिया. एंड फिर हम इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे इट इज पार्शियल पॉजिटिव correlation. It is partial positive correlation. 0.90 will be our final answer. 0.90. Okay. 0.90 is our final answer.